Yes, so hopefully everything is good. Okay. So friends, आज का फिर से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं. ठीक है. आज फिर एक टॉपिक डिस्कस डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी सेंसिटिव है. वो इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि देयर वाज वन पर्सन, अ बॉय फ्रॉम, मीन्स he is at present he is IS. Okay, but he is unmarried. Okay, I don't want to take his name. Okay, I don't want to take his name. He is IS and he is unmarried. Okay, and again, this person is also he only. Okay, I rarely get a person having relationship issue with she pronoun. Okay, so very few girls get relationship issues in their life, and even if they get relationship issues, they get very different kind of relationship issue. Like they are confused, वो confused रहती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. ठीक है ना, तो उनके रिलेशनशिप इशू अलग होते हैं. सो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. तो लड़कियों के रिलेशनशिप इशू अलग होते हैं. मैं अभी इस पे फोकस करना चाहूँगा, इस बच्चे पे जो IS है, अनमेरिड है. मुझे इसका कॉल आया था 5 सितंबर को. इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है. इस टाइप का जो भी होगा वो कवर हो जाए, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है. ठीक है ना. इसका कॉल आया था. अब इसका कॉल आया था तो इसको प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसको रिजेक्शन मिल गया है. ठीक है ना, इसको क्या हो गया है, रिजेक्शन मिल गया है. लव लाइफ में रिजेक्शन मिल गया है. ठीक है. इनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इनकी तो क्या है कि इनके लव लाइफ में कौन किसको चूज करूँ वो प्रॉब्लम रहता है इनका. ठीक है, वो अलग बात हो गई. वो अलग टाइप का रिलेशनशिप इशू होता है, उनका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं. अभी इस पर फोकस करने वाला हूँ मैं. ठीक है. तो इसका क्या है, रिजेक्शन, लव लाइफ. अब देखिए दोस्तों, क्या है प्रॉब्लम इसके साथ. इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये रहा है, ये ऑनेस्ट टाइप का लड़का रहा है. ठीक है. ऑनेस्ट रहा है, मतलब ऑनेस्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर. ठीक है. कैरेक्टर अच्छा रहा है इस लड़के का, उस लड़के की बात कर रहा हूँ. कैरेक्टर अच्छा रहा है मतलब नो गर्लफ्रेंड एनकाउंटर. ओके, नो गर्लफ्रेंड एनकाउंटर इन लाइफ. ओके, दिस वाज फर्स्ट एनकाउंटर, and in that too rejection. Okay, so such is the situation, and he is this also. Okay, and he is means he is about 28 years old. Okay, he is about 28 years old, and he wanted to be in relationship with a girl, and he remained in relationship with a girl for 1 month. Okay, the girl's name also I won't take, his name also I won't take. He remained in relationship with that girl for 1 month, and after 1 month she actually rejected him. Okay, and he is also a good looking person. Okay, he is also a good looking person, and he is also, means earning is also good, and the girl with whom he the girl whom he liked is not IS, but at lower post, at lower post than him, at lower post than him, and okay, lower post than him. Only reason he liked her was that she was good looking. Okay, and he was really very badly rejected. Okay, badly rejected with use of wrong words. Although the words were not abusive. Okay, although not abusive words, but very wrong words were used for him. Okay, so let me tell you, beta, I can't even take your name, but suppose you are XYZ. Okay, so I will call you with the name XYZ. You are XYZ, right? You are a person, noble person. Okay, you are a noble person. So now let me tell you some facts. Okay, there are three types of boys in this world. Three types of boys in this world are there. What three types of boys are there? Number one. Okay, number one type of boy is, uh, you must have heard the song Hosanna, right? Hosanna song, 2011. Hosanna song 2011 from the movie
एक दीवाना था, फ्रॉम द मूवी होसाना 2011, एक दीवाना था. Movie film is this, film name is this. I haven't watched the movie, but I have heard this song because this song was super duper hit at that time. Hosanna. Okay. So what are the lyrics of this song? The song says, दिल होते जो मेरे सीने में दो, दिल होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं देता तुम्हें तोड़ने को. ठीक है ना. तो लिरिक्स ऐसे हैं उस फिल्म उस गाने के कि दिल होते जो मेरे सीने में, ऐसा हो चलता है. ठीक है. आतिफ असलम ने गाया है, मेरे ख्याल से गलत नहीं हूँ अगर मैं तो. ठीक है ना. ये पहली कैटेगरी बॉयज़ की है. और एक गाना मैं बोल सकता हूँ जो आशिकी 2 फिल्म का है गाना. ठीक है. क्या है गाने का नाम? तुम ही हो. ये तो सभी ने सुना है भाई, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो. ठीक है. चैन भी मेरा दर्द भी, ये आशिकी अब तुम ही हो. अब ये क्या है? ये आशिकी 2 फिल्म का गाना है. आशिकी 2. ओके. Let this be category 1. Let us call this category as category number 1. Okay. Then again there might be some more songs which I am not remembering. Okay. But ये दो गाने अभी के लिए ध्यान में रखो. ठीक है. Now second category of boys. Second category. Second category are उदासीन. उदासीन means लव एक माया जाल है. हम एक बार फंस चुके हैं, तब से हमने गर्ल्स के फील्ड से संन्यास ले लिया है. ठीक है. सो ये सेकंड कैटेगरी वाले क्या गाने सुनते हैं? इनके लिए अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में इनके लिए कोई गाने ही नहीं बनते. अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में इनके लिए कोई गाने ही नहीं बनते. तो ये क्या टाइम पास गाने सुनते हैं. टाइम पास सॉन्ग कैसे होते हैं? जैसे एक गाना है यो यो हनी सिंह का, तू मेरा 22. ठीक है. तू मेरा 22 मैं तेरा 22. ठीक है. ये गाना ऐसे टाइम पास गाने सुनते हैं. या फिर वो हॉर्नो के प्लीज नहीं था वो गाना यो यो हनी सिंह का, हॉर्नो के प्लीज, एकदम टाइम पास गाना. ठीक है ना. तो ये तो कैटेगरी 2 हो गई बॉयज़ की. ठीक है. ये और फिर आती है थर्ड कैटेगरी बॉयज़. ये हो गए दो कैटेगरी. नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉयज़. इनको क्या कहना चाहिए बेसिकली? लीचर टाइप. ओके. लीचर टाइप मतलब वो राम नागेश श्रीनिवास नहीं है, राम नागेश श्रीनिवास अपुबथिनी उसके टाइप के, या फिर जो केसेस होते हैं जो पेपर में छप के आते हैं, ये उस टाइप के हो गए. ये किस टाइप के गाने सुनते हैं? ये जो गाना आया था 2010 में. ठीक है. LSD टाइटल ट्रैक, ये ऐसे गाने सुनते हैं. ठीक है. ये हो गया. या फिर वो हाई हिल्स नहीं आया था 2012 में, हाई हिल्स. अब इसमें क्या कंट्रोवर्शियल था बोलोगे तुम? इसमें कंट्रोवर्शियल ये था, ये तो बता तू है कौन, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, बस कर ये जलवे ना दिखा, ये सब मैं बहुत देख चुका, तुझ जैसी तो पड़ जाती है, फिर दुर्घटना घट जाती है, मैं हूँ शिकारी कुड़िए, खाली खाली मेरा वार न जाता, मुझको न पहचाने क्यों, तेरे घर अखबार नहीं आता. ठीक है. ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्रिमिनल एटीट्यूड है. दिस इज व्हाट इज क्रिमिनल. ओके. ये 2012 वाला हाई हिल्स जो गाना था उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ये 2010 का गाना है. ठीक है. और है विकी डोनर का गाना है. ठीक है. विकी डोनर का बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का गाना है. इसके तो लिरिक्स भी नहीं बता सकता मैं. ठीक है ना. ये जो गाना है यहाँ पे, ये जो गाना है ये तो कैलाश खेर ने गाया ये गाना. ठीक है. कैलाश खेर ने गाया है. ठीक है. और ये जो गाना है इसके मैं लिरिक्स भी नहीं बता सकता. इतना मतलब अजीबोगरीब कंट्रोवर्शियल किस्म का गाना है. ठीक है ना. कैलाश खेर ने गाया है. विकी डोनर का कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं? रम 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 ओ विस्की, वो नहीं क्या, रम एंड विस्की, वो गाना. उसमें वो क्या बोलता है? डैश ले डैश ले. ठीक है ना. उस गाने की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो ये 2011 का गाना. ठीक है. तो और भी मिल जाएंगे ऐसे गाने क्रिमिनल प्रवृत्ति के. ठीक है. ये वो 2015 में भी शायद एक हाई हिल्स गाना आया था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं हाई हिल्स 2012 वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो बोलता है कि मुझको ना पहचाने क्यों, तेरे घर अखबार नहीं आता. ठीक है. वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ये थर्ड कैटेगरी. ठीक है. नाउ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ठीक है. अभी आप ये सब गाने सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो जो गर्ल्स होती है,
ठीक है, अब गर्ल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी। गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, गुड लुकिंग, नॉट गुड लुकिंग। Okay, now in this good looking category, two categories are possible. In this good looking category, two things are possible. Either she may be clean hearted, or she may be काहिया। काहिया मतलब समझते हो ना, चालू, चालू बोलना चाहिए, चालाक बोलना चाहिए, मतलब खराब नेचर की। ओके, और यहाँ पे भी दो कैटेगरीज पॉसिबल है, क्लीन हार्टेड एंड दो कैटेगरीज हो गई काहिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो तीन कैटेगरी ऑफ बॉयज है, 1, 2 और 3, ठीक है, कहाँ कहाँ ये 3, ठीक है, इन 3 कैटेगरी ऑफ बॉयज में से 1 and 3 गो फॉर गर्लफ्रेंड, 1 and 3 गो फॉर गर्लफ्रेंड। जो सेकंड कैटेगरी है वो बेचारे बोलते हैं कि नहीं भैया एक बार झेल लिया, बहुत हो गया, ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी चली गई यहाँ से। दे आर इन सर्च ऑफ गर्लफ्रेंड, 1 and 3 आर इन सर्च ऑफ गर्लफ्रेंड। अब होता क्या है दोस्तों, ये 1 और 3 दोनों को यूजुअली, 1 और 3 कैटेगरी के बॉयज दोनों को यूजुअली पसंद आती है यही, पसंद यही आती है, ठीक है, पसंद यही आती है। इट इज़ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट, इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ वेरी रेयर दैट 1 and 3 कैटेगरी बॉयज आर गोइंग फॉर नॉट गुड लुकिंग गर्ल। ओके, दिस इज़ वेरी रेयर। सो इनको हटा दो लिस्ट से, ठीक है, इनको डिस्कशन से हटा दो। जैसे कैटेगरीज में सेकंड बॉयज को हटा दिए थे, वैसे इनको हटा दो लॉ के डिस्कशन से, क्योंकि ये है ही नहीं पार्ट, और वो नंबर 2 भी जो है डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, 1 and 3। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूँ, इन इन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, इनकी इनकी ओके, तो ना अर्बन एरिया और रूरल एरिया वाला किस्सा बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूँ, ये जो है, ठीक है, इनकी अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो गुड लुकिंग, दो पॉसिबिलिटीज थी, क्लीन हार्ट ऑब्लिक काहिया। Only 3% are here, 97% are here. This is truth about urban area. Okay, but now let us generalize right now. Let us keep it general. And I am not talking about a good-looking girl who has been literally censored. Okay, I am talking about empowered ones. Okay, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पावर्ड वंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जिनको घर से तक बाहर नहीं निकलने दिया गया, वो तो बेचारी, वो तो जेंडर गैप का पार्ट है, उसको तो बेचारी को पता नहीं क्या करेंगे, मतलब बेचारी की ज़िंदगी ख़राब करके रखी है, ठीक है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, कैद करके रखें, या फिर केवल और केवल किचन में लगा के रखें, या फिर उससे बहुत ज़्यादा दहेज लिया जा रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एम्पावर्ड वाली की बात कर रहा हूँ। एम्पावर्ड का मतलब यह है कि उस टाइप की जो कम से कम नौकरी में है, या जैसे ये इसका जो केस था, ये XYZ जो लड़का था, ठीक है, इसका जो केस था, वो केस कौन सा था, उसका जो केस था उसमें वो जो लड़की थी वो ऐसे सेंसर्ड परिवारों से नहीं थी, इसलिए मैं अर्बन यूज़ कर रहा था। एम्पावर्ड का मतलब, मेरा मतलब अर्बन से है ही, मतलब अब ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में कोई वुमेन एम्पावर्ड है ही नहीं, रहती है, लेकिन संख्या कम है, ठीक है ना। तो यूजुअली अर्बन एरिया ही मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अर्बन एरिया की एम्पावर्ड वुमेन जिसके पास मोबाइल सब कुछ है, एम्पावर्ड से मेरा मतलब है कि उसको कोचिंग भी भेजे उसके पेरेंट्स ने, ठीक है, नौकरी भी कर रही है, ठीक ठाक नौकरी कर रही है, ठीक है, यानी इस टाइप की उसको एम्पावर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर इस टाइप की है कि क्या कहना चाहिए उसको, चलो छोड़ो, पर है एम्पावर्ड है, ठीक है, गुड लुकिंग एम्पावर्ड, अर्बन और खासकर अर्बन, ठीक है। तो ये जो गुड लुकिंग गर्ल्स है, इनमें क्लीन हार्ट का रेशो 3% है और काहिया का रेशो 97% है। और वो कैटेगरी ऑफ बॉयज 1 and 3 आर कमिंग एंड प्रपोजिंग दिस। ओके, तो आइदर आपका प्रपोजल यहाँ जा सकता है या आपका प्रपोजल यहाँ जा सकता है, ठीक है ना। तो वो जो लड़का है XYZ, वो एक्चुअली 1 कैटेगरी का है। ओके, 1 कैटेगरी का है, मतलब वो नोबल लड़का है,
नोबल लड़का है मतलब वो इस टाइप का है, दिल होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं तुम्हें देता तोड़ने को, ठीक है, या फिर तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो ये नोबल कैटेगरी होगी, ठीक है। इन कैटेगरी वन का ये XYZ लड़का है जो कि आज की डेट में IAS है। उसका नाम मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहता, उसकी इज्जत नहीं उतारना चाहता मैं उसका नाम बता के। राइट टू प्राइवेसी नाम की चीज़ दे रखी है संविधान में, ठीक है। सो वो XYZ लड़का जो है अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी को लाया करता है, ठीक है। अब हुआ क्या है, उसका जो प्रपोजल है वो वन कैटेगरी का, उसका प्रपोजल यहाँ जाने के बजाय, जो कि ज़्यादातर लड़कों के साथ यही होता है, उसका प्रपोजल यहाँ जाने के बजाय यहाँ जाता है, गया है उसका मतलब प्रपोजल इधर गया, इधर जाने के बजाय, ठीक है, इधर गया, जो कि ज़्यादातर लड़कों के साथ यही होता है, इधर ही जाता है, तो इधर गया। तो होना क्या था, 1 महीना रिलेशनशिप टिकी, उसके बाद में रिजेक्शन मिल गया, और अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है कि इसने दारू वारू पीनी चालू कर दी है, ठीक है ना। इतना स्ट्रेस में है कि इसने दारू पीनी चालू कर दी है, ठीक है। तो और वो इतने, ऐसा नहीं कि लिमिटेड पी रहा है, वो बहुत ज़्यादा पी रहा है, मतलब ऐसा इसी रेट से अगर दारू पीता रहा तो 10 साल के अंदर स्वाहा हो जाएगा भाई, हो गया, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रेस में है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ कि 3% और 97%। अगर मैं इनकी बात करूँ जिनको मैंने डिस्कशन से बाहर कर दिया था, कौन सी लड़कियों को, इनको, नॉट गुड लुकिंग गर्ल्स की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे जो रेशो है, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये तो गुड लुकिंग की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं नॉन गुड लुकिंग गर्ल्स की बात करूँ, ओके, तो यहाँ पे गुड क्लीन हार्ट और काया का रेशो कितना है। क्लीन हार्ट आपको मिलेगी 60% और काया मिलेगी 40%। अब ऐसा क्यों है भाई कि गुड लुकिंग गर्ल्स में क्लीन हार्ट का रेशो मात्र 3% और नॉन गुड लुकिंग गर्ल्स में क्लीन हार्ट का रेशो 60%। ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जब जब ये 14 साल की हुई होंगी, ये दोनों टाइप की लड़कियाँ, गुड लुकिंग और नॉन गुड लुकिंग, जब ये 14 साल की हुई होंगी, तो जो गुड लुकिंग है ना, वो जैसे ही 14 साल की हुई होगी, कई सारे लोगों के उसको प्रपोजल्स कई सारे आने चालू हो गए होंगे, ठीक है ना। और लड़कों की तो एक गंदी आदत होती है कि किसी के भी साथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। लड़कों की बहुत गंदी आदत होती है कि वो किसी के भी साथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड लुकिंग है, इसको एक दिन के, ठीक है, इतनी डिमांड रहती है इनकी मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में इनको, मतलब मैं तो सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ फिर भी मुझे उतने मैसेज नहीं आते, मैं सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ, इतने सारे लोग कांटेक्ट में फिर भी उतने मैसेज नहीं आते। इनको एक दिन में 300 प्लस चैट होती है, इतनी डिमांड होती है इनकी मार्केट में, एक दिन में 300 प्लस चैट होती है इनकी, ठीक है ना। और वो 300 प्लस चैट में 50 प्लस जो है प्रपोजल्स होते हैं। 50 प्लस क्या होते हैं? प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है। 300 प्लस और ये 50 प्लस क्या होते हैं? उसमें से प्रपोजल्स होते हैं। तो इनको क्या लगता है, ये जो दिल दिल विल प्यार व्यार, ये जो मोहब्बत वाली जो बातें हैं ना, ये इनको एज ग्रांटेड लगने लगती है। क्यों एज ग्रांटेड लगने लगती है? क्योंकि इनके कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एनकाउंटर हो चुके होते हैं। कई लड़के इनकी ज़िंदगी में, जैसे 9th स्टैंडर्ड में थी, सपोज 9th स्टैंडर्ड में थी, तो 9th से 10th तक के एक बॉयफ्रेंड रहा होगा, ठीक है। फिर 10th के बाद में कॉलेज चेंज हुआ होगा, तब 10th से 11th एक रहा होगा, ठीक है। फिर 11th से 12th एक रहा होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर एक रहा होगा, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर एक रहा होगा, थर्ड ईयर से फाइनल ईयर एक रहा होगा, फाइनल ईयर के बाद और कोई रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इनके लिए ये आम सी बात हो जाती है। और ये यही है वो जो तुमको पार्क में अंधेरे में बैठी दिखेगी, पार्क में अंधेरे में, ठीक है ना, पार्क में अंधेरे में लड़के के साथ बैठी हुई जो दिखेगी, वो यही दिखेगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, सो इन दिस गुड लुकिंग ऑल्सो ओनली 3% आर सच। वो 3% कैसी होती है? सीधे ब्लॉक करती है। ये 300 प्लस जो चैट है ना, ये सीधे ब्लॉक कर देगी, थोड़ा सा भी इधर उधर की बात दिखी सीधे ब्लॉक करती है, ठीक है। तो अब वो ऐसा नहीं है कि अब कभी कभी क्या होता है, कोई काइया भी ब्लॉक कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूजुअली ये थोड़ी सी, या फिर ब्लॉक नहीं करेगी तो रिप्लाई नहीं देगी, इस टाइप का करती है, ठीक है ना। और ये इनके साथ क्या हुआ है नॉन गुड लुकिंग के साथ, इनको कोई मिला ही नहीं लाइफ लॉन्ग, कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला। इसलिए ये ये इन सब बातों में नहीं पड़ती। तो यहाँ 60% रेशो होता है क्लीन हार्ट का, क्लीन हार्ट का रेशो 60% होता है यहाँ, ठीक है ना। और गुड लुकिंग में क्लीन हार्ट का रेशो मात्र 3% होता है। क्लीन हार्ट से मेरा मतलब है, क्लीन हार्ट से मेरा मतलब है ये है, ठीक है, नोबल कैरेक्टर है। मतलब नोबल कैरेक्टर मतलब ये ऐसा, जैसे ये XYZ लड़के का नोबल कैरेक्टर था, वैसे ये XYZ लड़के का जो नोबल कैरेक्टर था ना, मैंने बताया था क्लास के शुरू में, ये
ठीक है, तो ऐसी होती है। तो 3% ऑफ गुड लुकिंग गर्ल्स आर लाइक दिस। ओके, तो पर आपने तो प्रपोज किया, तो आप तो अब ये इंसान मनुष्य प्राणी ही ऐसा है कि इसका दिल पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आपको अगर पता होता कि कौन गुड लुकिंग अच्छी है, हार्ट की अच्छी है, तो आप तो उसी के पास जाते ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? तुम तो वो तो सब मिक्स रहती है। तो फिर तुमने ट्रायल तो किया, लेकिन वो 97% के हाथ चले गए तुम, ठीक है ना, तो हत्ते चढ़ गए तुम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो नॉन गुड लुकिंग है इसमें, तो ये नॉन गुड लुकिंग में 40% काइया क्यों है? वो इसलिए, रीजन इज डिफरेंट एंड नॉट लॉ। ओके, रीजन इज डिफरेंट, नॉट लॉ प्रपोजल्स। ओके, वो ऐसी बात है कि मतलब नहीं होता, ह्यूमन नेचर बोलना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन नेचर, ठीक है। सो रीजन इज डिफरेंट, नॉट लॉ प्रपोजल्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ आपने किस टाइप के बनना चाहिए? एंड द वर्स्ट थिंग इज, हद तो तब हो जाती है भाई, हद तब हो जाती है जब, हाँ, तो ये कैटेगरी 1 2 3 है, ठीक है। नाउ हद कब हो जाती है? आप कैटेगरी 1 हो और कोई कैटेगरी 3 है, ठीक है। आपको चूज ना करके वो इसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है, ठीक है। आपको आपको चूज नहीं की, आपको चूज नहीं की, आप नोबल कैरेक्टर के थे, ठीक है। आप नोबल कैरेक्टर के थे, आपको चूज नहीं की। इंस्टेड शी वेंट फॉर दिस, एंड द बिटर ट्रूथ इज बिटर ट्रूथ इज दैट फॉर मेकिंग बॉयफ्रेंड, ओके, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये चाहिए, ठीक है। बॉयफ्रेंड बनाने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उनको ये चाहिए, नंबर 3 कैटेगरी, मतलब वो वाली, तेरे घर अखबार नहीं आता वाली, देखो ना, नंबर 3, ये इस टाइप की, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उनको वो चाहिए। 97% ऑफ गुड लुकिंग गर्ल्स की कहानी है कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए वो चाहिए, ठीक है। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नंबर 3 कैटेगरी चाहिए। लेकिन लेकिन फिल्म्स में फिल्म्स में मतलब जैसे आज की 2 फिल्म जो है बहुत हिट हुई थी, आज की 2 फिल्म जो है बहुत हिट हुई थी। तो आज की 2 फिल्म जो हिट हुई थी उसके पीछे कारण ये था कि वो लड़कियों को बहुत पसंद आई थी फिल्म, ठीक है ना। तो क्योंकि वो लड़का नोबल कैरेक्टर का था, तो फिल्मों में और पति के रूप में, कि फिल्म में और पति के रूप में, फिल्मों में और पति के रूप में उनको नंबर 1 कैटेगरी अच्छी लगती है। लेकिन जब गुलछर्रे उड़ाने की और टाइम पास की बात आती है ना, मतलब जो असली चीज़ है, मतलब असली चीज़ बोलना चाहिए, मतलब असली चीज़ नहीं कहना चाहिए, मतलब ये वाला जो है, ओके। एंड यहाँ पे या इस टाइप के रिलेशन, ठीक है, उनको ये पसंद आता है, नंबर 3, ठीक है, ये इसके लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। और यहाँ पे, ओके, डज नॉट मीन दिस, ओके। These type of relation do not mean this, okay. No girl, okay, almost I'm saying, exceptions are everywhere. Almost no girl does this before marriage, okay, in India. About India I am saying, okay. But by this by this I simply mean, by these relations I simply mean kissing type, okay, kissing, smooch, etc. मतलब ऊपर ऊपर का जिसको कहते हैं, ऊपर ऊपर का, ठीक है ना, वो, ठीक है। तो जब इसकी बात आती है तो उनको नंबर 3 पसंद आता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द बिटर ट्रूथ अबाउट प्रेजेंट डे की, और खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन गर्ल्स, ओके। सो दिस इज द रियलिटी। सो इसीलिए ये जो तुम नोबल कैरेक्टर के लड़के हो ना, तुम नोबल कैरेक्टर के लड़के हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नोबल कैरेक्टर छोड़ दोगे अपना, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि इनको इनको बहुत प्रीफर करती है लड़कियां इसके लिए
इनको बहुत प्रीफर करती है लड़कियां, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बन जाओगे। तुमने अपने एथिक्स और मॉरल्स कभी नहीं भूलने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बन जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे। इसका मतलब केवल इतना है, तुम अपने एथिक्स मॉरल मत भूलो, तुम अपने एथिक्स मॉरल मत भूलो, ठीक है ना। पर तुम ये कैटेगरी में भी मत रहो, वन कैटेगरी में भी मत रहो, क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे कि दिल होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं तुम्हें देता तोड़ने को, तुम जैसे ही ये कहोगे वो दूसरा दिल भी फट से तोड़ देगी, ठीक है ना। वो दूसरा दिल भी भकाक से तोड़ देगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मत बनो, कैटेगरी वन के भी लड़के मत बनो और कैटेगरी थ्री के भी लड़के मत बनो, ठीक है। नोबल कैरेक्टर के रहो, नोबल कैरेक्टर के रहो, लेकिन सेकंड कैटेगरी में आ जाओ। जस्ट शिफ्ट शिफ्ट योर सेल्फ टू कैटेगरी नंबर टू, जस्ट शिफ्ट योर सेल्फ टू कैटेगरी नंबर टू, विच इज़ लॉ। एक माया जाल है, हम एक बार फंस चुके हैं, तब से हमने गर्ल्स के फील्ड से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ये कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। एंड दिस स्ट्रेटेजी इज ओनली फॉर नोबल बॉयज, ओके। दिस स्ट्रेटेजी is only for noble boys, and these noble boys constitute only 5% of total boys population, only 5% of total boys population, only 5% of total boys population, okay. So this strategy is only for noble boys. अगर आप, if you are not noble, okay, तो फिर फंडा क्या है? फंडा सिंपल है भाई, एक गई तो दूसरी तो आनी है, दूसरी तो आनी ही है। चिंता क्या है? ओके, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट नोबल देन दिस इज द फंडा फॉर यू, एंड फॉर 95% बॉयज दिस वर्क्स, okay, for 95% of boys, for 95% of boys this funda works, okay. So if you are not noble then it is well and good. मैंने तो नोबल कैटेगरी के बॉयज की बताया, वो जो बंदा था जो आईएएस था और ये सब कंडीशन थी कि वो ये भी था वो भी था, ठीक है ना। देखो ना क्या क्या नहीं था वो, ठीक है, सब कुछ था वो, ठीक है। तो ये ऐसा था, ये था, ठीक है, ये था, ठीक है, ये भी था उसके साथ एसोसिएटेड, okay. So this is category of noble boys, and only 5% are such noble boys. So for such persons, for such noble type of persons, this is the strategy that you should actually shift yourself, you should actually shift yourself from this first category to this second category, you should actually shift yourself, okay. So this is the thing, and never go to this category. ये कैटेगरी में कभी मत जाना सिर्फ इसलिए कि लड़कियां इनको ज़्यादा प्रीफर कर रही है टाइम पास रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना। टाइम पास रिलेशनशिप के लिए लड़कियां इनको ज़्यादा प्रीफर कर रही है, इसलिए इनके ये मत बन जाना, ठीक है ना। तुमने अपने एथिक्स और मॉरल्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तुम्हारी नोबिलिटी किसी न किसी दिन काम आएगी, तुम्हारा नोबल कैरेक्टर, तुम्हारी नोबिलिटी किसी न किसी दिन काम आएगी, ठीक है ना। तो तुमने ये नहीं बन जाना है, तुमने कैटेगरी वन भी नहीं बनना है, लेकिन क्योंकि कैटेगरी वन क्या है, तुम नोबल तो हो लेकिन क्या है, तुम डिप्रेस हो जाओगे इस चक्कर में, क्या है, तुम डिप्रेस हो जाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि आज की टू टाइप होती है लड़कियां जो साथ देती है किसी लड़के को, तो तुम गलत सोच रहे हो माय फ्रेंड, मेरे XYZ, मेरे प्यारे दोस्त XYZ। ये जो तुम अगर सोच रहे हो कि आज की टू टाइप मेरी कहानी बन जाएगी, तो तुम गलत सोच रहे हो, कंप्लीटली गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। उसको कायर बोल के कब की छोड़ के चली जाती है वो लड़की, उस लड़के को कायर बोल के कब की छोड़ के चली जाती है वो लड़की। वो श्रद्धा कपूर जो उसके साथ आखिरी तक टिकी रही, उसका नाम अपने नाम के आगे लगाती रही एंड तक, वैसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है ना। वैसा होता है, पर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है। वो किसके साथ होगा? आज की टू टाइप स्टोरी किसके साथ बनती है बताओ? आज की टू टाइप स्टोरी इनके साथ बनती है, ये गुड लुकिंग एंड क्लीन हार्टेड, जो कि 3% है केवल, इनके साथ बनती है वो सिचुएशन, ठीक है ना। तो इट इज रेयरेस्ट ऑफ ए रेयर इवेंट। तो इसलिए उस हिट एंड ट्रायल में मत जाओ, हिट एंड ट्रायल में मत जाओ कि मैं एक एक को ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। उस हिट एंड ट्रायल में मत जाओ, ठीक है। तुम डिप्रेस होते जाओगे, बार बार रिजेक्शन मिलेंगे। हिट एंड ट्रायल करोगे तो बार बार रिजेक्शन मिलेंगे, और डिप्रेस होते जाओगे, और ज़्यादा दारू पीते जाओगे, और ज़्यादा दारू पीते जाओगे, ठीक है ना। तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द सेशन, और यही मैं बताना चाहता था, ठीक है। सो होपफुली कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।